सो आज हम लोग देखेंगे CSV फाइल, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट इन CSV फाइल. Okay, so we start with the import CSV. Okay, now suppose you have to read the CSV file. Okay, now CSV file क्या है? CSV file is a comma separated file. ठीक है, so we can see the example. So suppose I have one CSV file. Okay, so this is the CSV file. Okay, we can make it as a comma separated value. So the first is the header, second thing is the values. Okay, so all values are separated by the commas. It may be separated by the space also. Okay, it may be separated by the at the rate also. So instead of the comma, you can use any character. Okay, so but CSV file is the comma separated value. Okay, now how to read and write these files. Okay, so now we start with the CSV file. So we look, we use one package, that is the import CSV. Okay? So if we use this, now first thing we have to import CSV. Okay? Now we open the file just like we open a text file. Okay, open. Suppose the file name is, what the new file name is data.csv. Okay, now we use data.csv. Okay, so now this file we are going to open in a read. Okay, because we are going to read. Now how to read? Okay, so f equal to open data.csv and then so file. Now we created one file object. Now we created one file object while we are using the CSV. Okay, now we use one function that is CSV reader. Okay, so by using this, okay, अब हमें क्या करना है? CSV reader use करना है. Then we create one object. ठीक है, CSV reader क्या करते हैं? So now अब ये जो f है ये क्या है? आपका फाइल ऑब्जेक्ट. फाइल ऑब्जेक्ट है मतलब इन द सेंस उसको हम लोग इस टाइप से देखते हैं कि is your file object. Okay, so just like your file. Okay, ये आपकी comma separated file है. Then we use f. So f is just like a pointer, just pointing to the first row or the first uh, byte of the file. Okay, now from this f we want to read all these lines. ठीक है, सारी lines मुझे read करनी. Just like in a text we are using that f dot read. So f dot read, whenever we use f dot read, it read all the lines. ठीक है, so अब हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे? We use the CSV reader. Okay, CSV reader क्या करेगा? It will read all the data. CSV reader will read all the data just like the read lines. Okay, so we use the CSV reader. Okay, so we use the CSV reader. Okay, the file, it means f. Delimiter we can use. By default delimiter is a comma, so we can escape this. Okay, so we just use CSV reader then f. Now all record will be copied in a R. Okay, or in data. Okay, so now CSV reader f, just like we use f dot CSV reader now, but we are using the CSV reader because we are using the function called the CSV. Okay, now CSV reader will fetch all data from the f. f जिसको पॉइंट कर रहा है, जिस पर्टिकुलर फाइल को पॉइंट कर रहा है, उस पर्टिकुलर फाइल का सारा डेटा इस डेटा के अंदर कॉपी हो जाएगा. ओके, नाउ अब इस डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं. फॉर रिकॉर्ड इन डेटा. Okay, now if you use print rec, okay, so it will display all things. अभी हमें सारी चीजें कैसे मिल रही है? लिस्ट के फॉर्म में मिल रही है. ओके, क्लियर है? सो आपके पास ये जो डेटा है, डेटा क्या कंटेन करता है? इट होल्ड्स लिस्ट, बट ये सारी लिस्ट एक साथ होल्ड नहीं करता. ओके, सो अगेन इट पॉइंटिंग टू दी फर्स्ट रिकॉर्ड. स्टार्टिंग में ये फर्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट करता है. ओके, तो जो डेटा है
ओके, जस्ट इमेजिन करना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली. So when we use CSV data dot f, okay, okay, and we use data. So now, if you use the data, तो यदि हम लोग डेटा को यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, जिस क्या मिल रहा है, इट्स एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली. सो हो क्या रहा है, सो व्हेन वी यूज दिस फंक्शंस, ओके, सो इसने क्या किया, आपके पास यहाँ पर f था, these are the records, ओके, f पॉइंटिंग टू फर्स्ट. नाउ इस f को, now we are moving through data. Okay, so when we use the CSV reader f, now it means by using the data we can move this function f, this pointer f. So f क्या है, आपका पॉइंटर है. सो अब ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पर कॉपी नहीं हुआ है, जस्ट क्या बोल रहा है सिस्टम, बाई यूजिंग दिस स्टेटमेंट आपने क्या किया, इस डेटा के थ्रू आप इस f फंक्शन को मूव कर सकते हैं, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टाइम. सो जब हम लोग डेटा को प्रिंट करेंगे तो डेटा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि डेटा के पास कुछ है नहीं. ओके, सो व्हेन वी यूज दिस, ओके, सो अब ये क्या करेगा, डेटा के पास एफ है, तो जैसे आपने यहाँ पर किया, ओके, इससे रिकॉर्ड पेज की, नाउ डेटा से हमने किसके अंदर रिकॉर्ड लिया, आरईसी के अंदर रिकॉर्ड लिया. ओके, जस्ट एक लूप काइंड ऑफ, ओके, किस टाइप का है, इट्स ए काइंड ऑफ लूप. मतलब हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को मूव करेंगे. सो व्हेन वी मूव डेटा, इट विल ऑटोमेटिकली मूव द एफ. ठीक है, सो एफ को मूव करें. सो यदि हमें देखना है, ओके, तो यू कैन सी, ठीक है, ये क्लियर है. सो सपोज यदि आपको लगता है कि फर्स्ट आपका क्या है, हेडर है, सो वी कैन यूज एच डी इक्वल टू डेटा डॉट नेक्स्ट. ओके, तो मतलब क्या हुआ, डेटा डॉट नेक्स्ट. ओके, ओके, तो बेसिक थिंग क्लियर है. तो फर्स्ट आपके पास क्या है, हेडर है. सेकेंड थिंग आपके पास क्या है, डेटा. ओके, सो इट्स योर फर्स्ट प्रोग्राम दैट हाउ टू रीड ए पर्टिकुलर सीक्वेंस. सो अभी इसको इंडिविजुअल मुझे प्रिंट करना है, सो इंडिविजुअल वी कैन प्रिंट. ओके, इंडिविजुअल प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, अगेन वी पुट यहाँ पर फॉर आई एन आर एस. ओके, देन वी कैन यूज प्रिंट टाइप. तो अब ये क्या करेगा, इंडिविजुअल रिकॉर्ड प्रिंट कर देगा. ओके, सो सपोज आपको यहाँ पर वो यूज करना है, एंड वी कैन यूज पॉइंट. ओके, इस लूप के आउटसाइड हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, और ले प्रिंट कुछ नहीं किया तो इट विल टर्मिनेट द लाइन. ओके, सो सपोज आपको स्पेस यूज करना है, स्पेस में यूज करना है, सो इट विल डिस्प्ले द सेम. ठीक है, तो नेम के नीचे नेम है, मार्क्स है, आईपी है, बायो है, फिजिक्स है, टेस्ट है. ओके, तो इसने क्या किया, लिस्ट को अगेन फिर से हमने इंडिविजुअल एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए. ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, जैसे ही आपका एक वन लूप कंप्लीट होगा, देन इट विल यूज द प्रिंट. मतलब आपका फर्स्ट लाइन प्रिंट हुआ, so to send the pointer on the next line we use print. क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट कुछ नहीं करेगा, बट इट विल सेंड द पॉइंटर टू द नेक्स्ट लाइन. ओके, सो सिंपल, इतना क्लियर है. नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट सेकेंड थिंग. ओके, सो सपोज, ओके, ओनली हेडर प्रिंट करना है तो हेडर के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज दैट इफ एस इक्वल टू जीरो, सो इट विल द हेडर. जस्ट सिंपल, आपको पता है कि भाई फर्स्ट रो आपके पास क्या है, हेडर है, देन वी कैन सेपरेट इट. ओके, कैसे करेंगे, इफ एस इक्वल टू जीरो. ओके, सो इफ एस इक्वल टू जीरो,
मुझे पता है कि द फर्स्ट रो आपकी क्या है, हेडर है, सो वी आर प्रिंटिंग द हेडर। नाउ आफ्टर प्रिंटिंग द हेडर हमने क्या किया, एस इक्वल टू एस प्लस वन, नाउ इट इज प्रिंटिंग डेटा, जस्ट लाइक दिस। ओके, सो एस इक्वल टू जीरो, यहाँ पर एस इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू जीरो, मुझे पता है कि इनिशियली एस इक्वल टू जीरो होगा। जैसे आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी, नाउ एस की वैल्यू क्या होगी, वन। सो अब इसके बाद जो भी प्रिंट होगा, इट विल प्रिंट ओनली ओनली डेटा। ठीक है, बस हेडर हो गया, उसके बाद डेटा। सो हेडर के केस में एस इक्वल टू जीरो था, जीरो प्रिंट होने के बाद में अब एस की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। अब ये वन वैल्यू होगी, कभी भी ये वैल्यू कंडीशन ट्रू नहीं होगी, जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ऑलवेज क्या प्रिंट होगा, डेटा। ओके, नेक्स्ट हेडिंग टू सी एस वी फाइल। सपोज मुझे सी एस वी फाइल में राइट करना है। ओके, सो राइट करना है तो अब मुझे क्या करना है, सिंपल सी बात है, मुझे क्या बनाना है, फील्ड बनाना है एंड लिस्ट बनानी है, रोज बनाना है। सो टू राइट एन सी एस वी फाइल वी नीड और वी नीड लिस्ट, क्योंकि ये सारा लिस्ट पर ही ऑपरेट करता है। ओके, सो द सेम थिंग, आपको पास हेडर चाहिए, देन वैल्यू चाहिए। अब सपोज ये सेम वैल्यू को मुझे क्या करना है, राइट करना है। ओके, सो वी कैन राइट। सो आपने क्या किया, नाउ राइटिंग टू सी एस वी फाइल, राइटिंग टू सी एस वी फाइल। ओके, तो सिंपल हमने क्या किया, इनपुट सी एस वी किया। ठीक है, फील्ड्स, फील्ड्स पता है आपको, फील्ड्स मतलब आपके हेडर्स। आपने क्या लिया, नेम, ब्रांच, ईयर, सीजीपीए। ओके, सो इसमें किसके अंदर ले लिया, लिस्ट के अंदर ले लिया। नाउ वी मेड फ्रॉम लिस्ट रोज। सो रोज क्या है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है। ओके, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सेकंड एलिमेंट हो गया, ये थर्ड एलिमेंट हो गया, थर्ड रो, ये फोर्थ रो, फिफ्थ रो एंड देन सिक्स रो। सो इन द सेम जैसे डेटा आपका रीड होता है, उसी ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया, रीड रोज को पुट किया। ओके, सो आई थिंक क्लियर होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, सो आपके पास डेटा है, देन नेक्स्ट हमने क्या किया, रोज ली। ठीक है, नाउ ओके, सो नेक्स्ट अब इस डेटा को, फील्ड्स को एंड इस पर्टिकुलर डेटा को मुझे राइट करना है। ओके, सो नॉर्मली करता क्या है, लिस्ट ही राइट होता है, बट जब हमारे पास मल्टीपल लिस्ट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट को ऐसे कंबाइन कर देते हैं, लिस्ट को ऐसे लिस्ट मेंबर बना देते हैं। ठीक है, तो लिस्ट जीरो, आपके पास जो रो जीरो है आपकी फर्स्ट रो है, रो वन आपकी फर्स्ट वन है। ओके, टू थ्री फोर फाइव, ये सब क्या है कि रोज। ओके, तो नाउ उसको मुझे राइट करना है, सिंपल सी बात है। सो वी ओपन अ फाइल इन राइट मोड। ओके, कौन सी मोड में ओपन करना है, राइट मोड में ओपन करना है। तो एफ इक्वल टू ओपन, सिंपल आपने लिखा ओपन। नाउ वी यूज वन फाइल, सपोज राइट टू सी एस वी, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, राइट टू सी एस वी डॉट सी एस वी। ओके, तो ये आपका फाइल नेम है, बट मोड हमें स्पेसिफाई करना होगा दैट वी आर गोइंग टू ओपन दिस फाइल हमें राइट मोड। ठीक है, सिंपल सी बात है। सो नाउ ये क्या करेगा, द फाइल इज नॉट अवेलेबल, सो इट विल क्रिएट। Okay, whenever you open the file in write mode, if file not available, it will create. ठीक है, so write to csv फाइल अब क्रिएट हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, सेकंड, तो जब भी हम लोग csv फाइल यूज करते हैं, नाउ वी आर यूजिंग द csv functions. So now we are using csv dot writer, क्या यूज करेंगे, csv dot writer. So now we will use csv reader की जगह पर क्या यूज करेंगे, writer, and we make one variable which will send value from particular memory to writer. ठीक है, तो डेटा इक्वल टू सी एच वी डॉट राइट हमने यूज किया। नाउ अब इसके थ्रू हमें क्या करना है, डेटा को राइट। ओके, सो नाउ वी यूज, ठीक है, दीज फंक्शन राइट रो एंड राइट रोज। ठीक है, दोनों फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। नाउ विल यूज दिस फंक्शन, नाउ वी राइट डेटा डॉट राइट रोज। सो वी कैन यूज फॉर ऑल राइट रोज, राइट रोज। सो यहाँ पर देर आर टू डिफरेंट functions, write row and write rows. So when we write a single row, then we use write row. If we are going to write multiple rows,
Multiple rows, it means the list which contains another list. Okay, so in this case we are using the right rows. Okay, मतलब multiple rows. So आप ये काम इसके थ्रू भी कर सकते हैं, मैं दोनों से करके दिखाता हूँ आपको. ठीक है, so suppose we are using the right row and right rows functions. Now we just run it. Okay, अब मुझे देखना है कि write to CSV फाइल आपका राइट हुआ या नहीं हुआ. Now we'll open write to CSV file. Okay, so write to CSV file. Now nothing is there. Why? Okay, मैं क्लोज नहीं किया इसको. Okay, so now in the last you close it. Okay, now we'll see. Oh, sorry, and the fields and rows. Okay, and then it got closed. Now we'll open this file. Open like to CSV. Okay, now this one. ठीक है, so write to CSV file create हो गया with the CSV file. Okay, comma separated values. तो simple write करना. So now हम लोग बात कर रहे थे कि suppose मुझे राइट रोज फंक्शन यूज नहीं करना है, तो वी कैन यूज द राइट रो ओनली. बट इसके लिए फिर मुझे क्या यूज करना होगा, लूप यूज करना होगा. लूप कैसे यूज करेंगे, सपोज वी आर नॉट गोइंग टू यूज राइट रोज, वी कैन अगेन यहाँ पर. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज, आपने यहाँ पर राइट रोज लिखा, फील्ड लिखा, सो नाउ फॉर आई इन व्हाट रोज. ओके, सो हमने क्या लिया, एक फंक्शन लिया. नाउ विल राइट रोज एंड देन we use what we will use, I. Okay, so suppose we create two. Okay, the CSV2 file. Now we run it. Okay, now we can check that two file open हुआ क्या. Yes, two file open हुआ, we get the same. Okay, so you can write one record also, but difference क्या है कि अब हमें क्या करना होगा, loop run करना होगा. So I will run the loop unnecessary. So better we use rows. So it will write at a one time. Okay, so ये क्लियर है. सिंपल, आपको लिस्ट बनानी है. ओके, एंड लिस्ट को रीड करना है. द सेम यू कैन टेक फ्रॉम द यूजर आल्सो. आप यूजर से लिस्ट ले सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, जैसे भी आपको करना है. ओके, तो नाउ नेक्स्ट थिंग. ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है, हाउ टू रीड एंड राइट द डिक्शनरी. ठीक है, सो सपोज राइटिंग डिक्शनरी ऑब्जेक्ट. डिक्शनरी ऑब्जेक्ट मुझे क्या करना है, राइट. ठीक है, तो डिक्शनरी. ओके, सेम थिंग होगा किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. ओके, तो सपोज वी हैव वन डिक्शनरी. ओके, क्या है आपके पास, डिक्शनरी एंड देन फील्ड नेम्स. तो राइट डिक्शनरी टू ए फॉर्म CSV file. To CSV file. Okay, so import CSV is the basic thing here. Now what we are going to use, okay, a dictionary use किया. ठीक है, so now we use one dictionary inside. ठीक है, डिक्शनरी के अंदर क्या है, ब्रांच है आपका. ठीक है, CGP है, नेम है एंड ईयर. ओके, वन डिक्शनरी कंप्लीट. अनदर डिक्शनरी. तो डिक्शनरीज को ग्रुप करने के लिए हमने क्या यूज किया, लिस्ट. ओके, फिर सेपरेट हमने क्या दिया, फील्ड नेम्स. नाउ डिक्शनरी में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फिक्स ऑर्डर नहीं होता. ठीक है, ऐसी सारी चीजें, नेम यहाँ पर है, नेम यहाँ पर, ब्रांच है, ब्रांच है. बट डिक्शनरी कैसा है आपका, अनऑर्डर्ड, नॉट अ फिक्स ऑर्डर. सो वॉट एवर ऑर्डर वी डिसाइड इन a field name, it will use the same data. यदि सपोज हमें ईयर पहले रखना है तो आपकी फाइल में ईयर पहले आ जाएगा. इफ यू यूज द ब्रांच फर्स्ट देन ब्रांच पहले आ जाएगा. सो एज पर द फील्ड योर डेटा विल बी स्टोर्ड इन CSV फाइल. ओके, सो आप इस पर्टिकुलर फील्ड का जो भी ऑर्डर देंगे, इन द सेम ऑर्डर द फाइल होल्ड्स डेटा. ओके, सो हमने क्या किए हैं, यहाँ पर टू फंक्शन यूज किए हैं, एक तो रीड देन राइटर. ओके, so inside the writer we use write rows and write row, two functions. ठीक है,
अब हम लोग यहाँ पर एक और फंक्शन यूज करेंगे व्हेनेवर वी यूज अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। ओके, so whenever we use a dictionary object, we use one function that is the dixwrite. Okay, same है as it is the same, but आपको क्या करना है, सिर्फ dixwriter को आपका फाइल देना है। ओके, फाइल ऑब्जेक्ट देना है, देन फील्ड नेम देना है। ओके, सिंपल सी बात है। नाउ वी आर गोइंग टू ओपन दिस सेम जैसे हम लोग पहले करते थे। ओके, सो एफ इक्वल टू ओपन, ठीक है, स्टूडेंट डॉट सीएसवी, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू ओपन इन राइट मोड, ठीक है, हमें क्या करना है, राइट करना है, ठीक है, इतना क्लियर है। एफ इक्वल टू ओपन स्टूडेंट डॉट सी एस वी एंड मैंने राइट में। नाउ अब हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया था, नाउ वी यूज, यहाँ पर मैंने यूज़ किया था लाइक रीडर, वी यूज राइटर। ओके, सो इंस्टेड ऑफ द राइटर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वी यूज वी यूज राइटर, ठीक है। सो अगेन हम लिया डेटा इक्वल टू एफ डॉट, यहाँ पर हम लोग कौन सा राइटर यूज करेंगे, वी आर यूजिंग टू डिक्स राइटर, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू यूज डिक्स राइटर, okay, csv dot, okay, csv dot dictionary writer. Now we use csv फाइल की जगह पर f, बिकॉज हमारा फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, f फील्ड नेम इक्वल टू फील्ड्स, ओके। सो इस फील्ड नेम के अकॉर्डिंग वो यहाँ से डेटा आपकी फाइल में स्टोर करेगा, क्लियर है। सो नाउ यहाँ पर हम लोग ट्रेन राइटर यूज किया था, नाउ वी आर गोइंग टू राइट बाय यूजिंग द राइटर, ओके। सो नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हमें क्या करना है, वी आर यूजिंग द टू फंक्शन, ओके, राइट रोज एंड राइट हेडर। सो यहाँ पर डिक्शनरी राइटर है, तो डिक्शनरी राइटर क्या करेगा, वी यूज वन फंक्शन, ठीक है, फंक्शन आपने क्या यूज किया, लेट राइटर इक्वल टू, ओके, राइट हेडर्स, तो राइट हेडर्स, ओके, राइट हेडर्स क्या करेगा, इट विल राइट, कौन से हेडर्स राइट करेगा, ये फील्ड आपकी, सबसे पहले फील्ड आपकी राइट होगी, ओके। सो इनिशियली फील्ड राइट होगी, सो इट विल राइट, हमने यहाँ पे जो भी कीज दिया है, ओके, दिस स्टेटमेंट विल राइट ऑल fields in this file, ओके। फिर इसके बाद बचता है आपके पास डेटा डॉट राइट रोज, ओके, राइट रोज, रोज कहाँ से लेगा, यहाँ से। नाउ ओके, राइट रोज क्या करेगा, इट विल स्टोर, नाउ इट विल कॉपी या राइट द वैल्यूज ऑफ द कीज, ओके, वैल्यूज ऑफ द कीज as per as per of the keys, ठीक है, ओके। सो फील्ड्स के ऑर्डर में यहाँ पर वैल्यू उठाएगा किसकी, जैसे आपके पास फील्ड में क्या है, फर्स्ट नेम, इट विल फाइंड आउट द फर्स्ट नेम। फिर नेक्स्ट क्या है, ब्रांच, इट विल फाइंड आउट द ब्रांच। नेक्स्ट ईयर, इट विल फाइंड द ईयर। द नेक्स्ट इज सीजीपीए, इट विल फाइंड द सीजीपीए। सो ओनली वैल्यू कॉपी करेगा, की वैल्यू की कॉपी नहीं करेगा। सो की को मैच करेगा किससे, फील्ड से, एंड देन वैल्यू को कॉपी करेगा किसमें, फाइल, ओके। नाउ वी कैन सी, ओके, इतना क्लोज हुआ। नाउ वी क्लोज एफ डॉट क्लोज, ओके, वेट, ओके, एफ डॉट क्लोज, ओके। नाउ वी कैन सी स्टूडेंट डॉट सी एस वी फाइल आपका क्रिएट हुआ क्या, now we see student.csv file, okay, we create it,
तो हमने कैसे डिक्शनरी से CSV फाइल बनाएंगे। ओके, सो डिक्शनरी से आपका CSV फाइल बना। ओके, कितना क्लियर होगा। सिंपल आपको क्या करना है, इसमें राइटर यूज करना है, हेडर इट विल राइट द फ्री नेम, देन राइट रूज हमारे पास पहले से फंक्शन था राइट रूज, ठीक है, हमने यहाँ भी यूज किया था राइट रूज। ओके, सो बट इस केस में क्या था, इट विल कॉपी, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू वैल्यू थी, अब बट यहाँ पर क्या है, की एंड वैल्यू दोनों, सो इट विल कॉपी द वैल्यूज ओनली। ठीक है, सेम और नाउ अब सपोज इसी को मुझे रीड करना है, ओके, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। तो नॉर्मली इट रीड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में रीड करता है, रीड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, रीड इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, सो नॉर्मली जो हम लोग रीड करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या रीड करता है, लिस्टेड डेटा। ठीक है, किस फॉर्म में रीड करता है, लिस्ट के फॉर्म में रीड। ठीक है, बट अब हमें डेटा किस फॉर्म में चाहिए, डिक्शनरी के फॉर्म में। to read data in the form of dictionary, we use simple. Okay, what do we use, simple। हमने क्या किया, ओके, import CSV with open, the same thing, आपको यदि फाइल ओपन करना है, मैं भी मोड, तो वी यूज ओपन, देना। ओके, now we put, ठीक है, सो वी कैन यूज द सेम थिंग। अब इसको कंपेयर आप लोग करना है तो कर सकते हैं, दैट सपोज इसी के जैसा मुझे स्टेटमेंट बनाना है। ओके, सो वी कैन यूज बोथ थिंग, फाइल इक्वल टू ओपन student dot csvr, okay, or we can use with open statement। ठीक है, इट विल सेम इक्वेलेंट, नो चेंज। ओके, आप यही भी यूज कर सकते हैं और सिंपल ये यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस, बिकॉज जो हमें पता है हम लोग उसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, बट इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, देन यू कैन यूज विथ ओपन स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या किया, फाइल को ओपन किया, ओके, CSV फाइल, ओके, जो भी आपका डेटा है, हमने यहाँ पर डेटा यूज किया है, डेटा CSV डॉट, ओके, डिक्स रीडर, जहाँ पर हम लोग डिक्स राइटर यूज करते थे, वहाँ पर हमने क्या किया, डिक्स रीडर यूज किया। नाउ इस डेटा के अंदर हमें क्या करना है, रोज देखना है, नाउ विल फाइंड आउट दी रोज। ओके, सो सिंपल, आपका ये डेटा ये रहा, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी आपके पास है, अब इसको अगेन आपको कैटेगराइज करना है, अलग अलग वैल्यू चाहिए, देन आप इसमें से कर सकते हैं। ओके, तो ओनली की चाहिए, इसके अंदर अगेन हम लोग चलाएंगे जैसे हमने यहाँ पर चलाया था फर्स्ट केस में। ठीक है, इंडिविजुअल चाहिए विदाउट डिक्शनरी, देन वी कैन यूज सेपरेटली। ठीक है, डिक्शनरी को कैसे कैटेगराइज करते हैं आपको पता होगा, तो सपोज आपको करना है, देन हम लोग कर सकते हैं, ओके, फॉर आई इन रोज। ओके, तो इट विल प्रिंट ओनली कीज। ठीक है, क्या प्रिंट करेगा, की प्रिंट करेगा। नाउ विल सी, आई ऊपर चला गया, सॉरी मैं रोज यूज कर लिया। ठीक है, so name branch year CGPA, name branch year CGPA, name branch year CGPA, what it is going to print, ये क्या प्रिंट कर रहा है, मैं बताया था, इट विल प्रिंट द कीज ओनली। ओके, ये सबकी कीज प्रिंट करेगा, यहाँ पे जितनी भी है सबकी की प्रिंट करेगा। ओके, इट इज गोइंग टू प्रिंट ऑल कीज। ठीक है, फिर आपको वैल्यू प्रिंट करना है, तो यहाँ पर आपने लिखा वैल्यूज, व्हाट वी कैन यूज, सो सपोज आपको की प्रिंट करना है और इसकी वैल्यू प्रिंट करना है, तो वी कैन यूज, व्हाट वी कैन यूज, डेटा inside,
data, sorry. No. Okay. So name Nikhil, branch UAE, year to, okay, CGPA, name Sanchit, branch UAE. So depend करता है आपको क्या print करना है. Okay. So same thing, if you want to print in a single row, you can use some again and equal to this हम last time use किया था. Okay. So यहाँ पर हम क्या करेंगे, print blank. Okay. It will print like this. Okay. Without. So आपको suppose key print नहीं करना है. You need to print the key. Only value print करना है, value print कर. ये प्रिंट करना है. आपको क्या प्रिंट करना है, आपको ओनली की प्रिंट करना है, ओनली की प्रिंट कर सकते हैं, ओनली वैल्यू प्रिंट करना है, ओनली वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं. ओके. तो ये हमारे पास CSV फाइल था. CSV फाइल में हमें नहीं देखना है हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट, हाउ टू रीड एंड राइट द डिक्शनरी ऑफ दिस. ओके. So now the CSV file is completed. Okay. So